ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جب قرآن میں تنوع ہوتا ہے مختلف انداز کی ظاہر ہو دوسری لا جاتا ہے کہ سب کو سنا جائے اور سب کی سوچ اور فکر ہوتی ہے، ہر ایک الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے. جو ظاہر کی خلا ہوتا اگر اس کو قرآن کو نہ کیا ہوتا آج کا تو خلا ہوتا اور اچھا نہیں ہوتا پسند. تو پورا میں تیار ہونا پڑا کہ ٹھیک ہے. موضوع جو آپ کے سامنے ہے ہجرت مدینہ اور نئے معاشرے کی تشکیل. کوشش ہم نے کی ہے کہ آپ کے سامنے اس تعلق سے باتیں کچھ عرض کی جائیں. بہت سارے اس سے موضوع کی باتیں نکل سکتی ہیں، گفتگو لمبی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے سامنے ہجرت مدینہ. تو اس سے ہیں اس موضوع کے ایک جو ہجرت مدینہ ہے دوسرے نئے معاشرے کی تشکیل. ہجرت کیوں کی جاتی ہے؟ ہجرت کے مطلب ہوتے ہیں ترک تعلق، ترک وطن. آدمی تعلقات اپنے ختم کر لے، وطن سے راہگیری اختیار کر لے، جہاں وہ رہتا ہے اس جگہ کو چھوڑ کے اس کو ہجرت. اور یہ ہجرت جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فمن کان ہجرت ہوئی یا دنیا یصیب ہوا اور امرأۃ تزوج ہوا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. ہجرت ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوتی ہے. ہم جس سماج میں رہتے ہیں لوگوں نے تنگ کر رکھا ہے ہم کو، ہمیں نماز پڑھنے کا نہیں موقع مل رہا ہے، ہم روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، طرح طرح کے مسائل ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر بھی ہجرت ہماری اللہ اس کے رسول کی ہے. اور ہم جب اس سماج کو چھوڑ دیں تو وہ اس ہجرت میں ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی جگہ ہم نے چھوڑی، اپنا مقام ہم نے چھوڑا اس لیے کسی دنیا طلبی کے لیے یا کسی حسین عورت سے رشتے کے لیے، شادی کے لیے، تو اس ہجرت کا کوئی ثواب آدمی کو نہیں ملے گا. ہجرت مدینہ. اب ہم غور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کیوں فرمائی. ڈاکٹر صاحب آئیے خالی ہے جگہ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ دعوت میں لگایا اور اس دوران بہت ساری دقتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. واقعات آپ کے سامنے آ بھی چکے. ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت حبشہ کی طرف دے دی لوگوں کو تو چلے گئے اور بہت سارے بڑے لوگ سردار بھی اور جو نامور لوگ تھے وہ بھی مدینہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف منتقل ہو گئے، مدینہ کی طرف چلے گئے. قریش والوں کو محسوس ہوا کہ یہ معاملہ کو کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. محسوس انہوں نے کر دیا کہ یہ بڑی آبادی یہاں سے جا چکی ہے اور یہاں پیچھے نہیں ہوئی، بہت کم ہی. تو ویسا نہ ہو کہ یہ آنے والا دن ہمارے لیے خطرہ بن جائے. تو انہوں نے سازش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی سازش کہ اب ممکن ہے کہ حالات جس انداز میں ہم دیکھ کر اپنی نگاہوں کے سامنے آگے چل کر کے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. تو قتل کی سازش کی اور دارالندوہ جہاں وہ مشورے کرتے تھے بیٹھ کر کے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا دارالندوہ تھا وہاں مشورے کرتے تھے. تو جتنے قریش کے سردار تھے سب کو انہوں نے بلایا کہ اس معاملے کو ذرا غور کر لیا جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں. چپکے سے آئے مشورہ کیا کہ یہ معاملہ کیسا حل ہوگا. چنانچہ سازش رچی کی رات صبح کی بالکل اندھیرے میں حملہ کیا اور اس میں شامل 10 لوگوں کو کیا جو سردار تھے، جو اپنے قبیلے کے نمائندہ افراد تھے، سردار تھے، ان کو شامل کیا. اور قریش کے جتنے لوگ تھے بڑے لوگ ان سب کو شامل کیا تاکہ بنو عبد مناف کے لوگ دعویٰ کسی پر نہ کر سکیں. سب کو اسی لیے اس میں سازش میں شامل کیا. اب یہ معاملہ ظاہر ہے دنیا چال چلتی ہے اور اللہ کی بھی ایک چال ہے وہ چلے اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے
जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से यह खबर पहुँचाई कि ऐसा मामला है और अब आपको हिजरत की इजाज़त दे दी। चुनांचे ठीक दोपहर में जब हिजरत करनी थी आपको, तो उसी दिन दोपहर को अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। और वो मौका ऐसा था कि जब कभी उस मौके पर आपका जाना अबू बकर का नहीं, लोगों को ताज्जुब हुआ कि मामला कुछ जरूर होगा। तो आप वसल्लम ने कहा, बकर अगर तुम्हारे पास कुछ बैठे हो तो तुमको हटा कुछ बात करनी। अल्लाह के रसूल ने वहाँ पहुँचे और अबू बकर से अर्ज़ किया कि हिजरत की इजाज़त दे दीजिए। अबू बकर हमारे खुशी को भूले नहीं संभाला, तो उन्होंने कहा कि तो मुझे भी इजाज़त दी गई है। कहा हाँ तुम्हें भी इजाज़त दी, आपको भी इजाज़त दी गई। चुनांचे अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तैयार किया। पहले से चूँकि मामला था कि हिजरत की इजाज़त दी जा सकती, तो 2 ऊँटनियाँ उन्होंने खरीदी और उसको पाला पोसा बड़ी मेहनत के साथ कि हम दोनों इसी पर सवार होकर के यहाँ से निकले। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने उस ऊँटनी की कीमत आपने अदा की। यहाँ का और का एक पहलू अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप वसल्लम के साथ ही, और आपने दोनों ऊँटनियाँ खरीदी थी अपने पैसे से। अल्लाह के रसूल ने गवारा नहीं किया, अच्छा नहीं समझा कि हम हज़रत अबू बकर की खरीदी हुई ऊँटनी पर सवारी करें, सफ़र उसकी कीमत आपने अदा की। नबी थे, पैगम्बर। हमारे यहाँ समाज में मामला क्या है कि मजहबी कोई पेशवा होता है तो या सियासी कोई पेशवा होता है, चाहता यह है कि अपनी जेब से कुछ हमारा खर्च हो, जो हमारे पीछे चलने वाले लोगों से हमारा बोझ संभाले। खास तौर से मजहबी पेशवाओं में बात कि सब कुछ उन्हें खरीद के दे दिया जाए, सारी ज़रूरतों की पूरी कर दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवारा नहीं किया कि उस ऊँटनी को पर वो सवारी करे, उसकी कीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। चुनांचे अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित को अपने साथ लिया रहबरी के लिए। यहाँ भी एक पैगाम हमारे अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित के बारे में आता है कि उस वक्त मुश्किल की हालत थी, मुश्किल ईमान नहीं लाया, लेकिन उनको रास्ते का रहबर बनाया। उनको एतमाद था, भरोसा था कि इस रास्ते को आउट नहीं कर सकते। तो आज की इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो हमें भी हमारे जो बरादरान वतन है तो काबिल एतमाद और भरोसे के लोग तो उनको हम किसी ऐसे मौके पर साथ दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चुनांचे हुआ क्या कि आपको हुक्म दिया गया, रात में जिस रात के लिए ये साजिश रची गई थी, अल्लाह के रसूल ने अपने बिस्तर के हज़रत नबी को सुला दिया और अपनी जो सब चादर थी उसको उड़ा दिया। और रात में आप निकल आई। लोगों ने कुरैश के जितने भी लोग सरदार थे 10 जिनको मुतय्यन किया गया था कि उनको जाने न दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लम ने धूल उठाई और सूरह यासीन पढ़ी और फिर सबके सरों पर डाल दिया और सामने से निकल आए। बाद में जब इन लोगों को खबर हुई, किसी ने आके बताया, आप वसल्लम को देखा जाते ही आके खबर दिया कि हाँ तुम लोग क्या कर रहे हो। उन्होंने बताया कि हमको इसी कुरान के तहत आया होता है। वो तो निकल गए। कहाँ निकल गए, कब निकले, कैसे निकले? चुनांचे देखा तो वहाँ तेरी रज़ियल्लाहु अन्हु आपके बिस्तर पर सोए। बहरहाल तेरी को बांधा और उनको फिर दबाव भी उन पर डाला और देखा तो बकर के यहाँ की वो भी नहीं है, उनके यहाँ गए, घर का घेराव किया। ये सारी बातें हमें सीरत के मिलती। चुनांचे हज़रत अस्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुहाजिरीन के इन दोनों मुहाजिरीन के लिए बहरहाल तोशा तैयार किया कि सफ़र में उनके जाएंगे और 5 मील के फासले पर गाड़ी छोड़ना। दोनों आदमियों ने वो रास्ता नहीं अपनाया जो आम रास्ता था जिसमें लोग आते जाते, बल्कि एक अलग रास्ता अपनाया और गारे सौर में पहुँचे। उस वक्त जहाँ गार था ऊंची चोटी पर, जबले सौर की चोटी पर आप वसल्लम के कदम जो है वो नौलहान हो गए थे। वो निकलना था तो वक्त में आपको दिया और ऊपर भी लेके गए। बहरहाल 3 दिनों तक गारे सौर में उस वक्त जो है गए। और जब ये खबर मिली लोगों को ये लोग निकल चुके हैं तो फिर मीटिंग की नशिस्त रखी और इनाम के तौर पर 100 ऊँट सुर्ख रखा कि जो भी उनको पकड़ के लेके आएगा 100 सुर्ख ऊँट उनको दिए। जब तक गारे सौर में रहे इनके तो बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बराबर खबरें लेकर के आते। रात का
दोनों मुहाजिरीन के साथ गुजारते और दिन का वक्त मक्के वालों के बीच में जितने भी वाक़यात होते, जितनी तरह की बातें होती, वो सारी बातें हज़रत अब्दुल्लाह के ज़रिए से आप दोनों आदमियों को मिलती थी। और फिर आम इब्न फुहैरा अल-कुफ़ा करके जो गुलाम थे, बकरियाँ जो चराते थे, तो दिन के औकात में ये बकरियाँ चराते और रात में उन बकरियों को लेकर के उनके यहाँ पहुँच जाते दोनों के, और दूध उनको पिला करके तो इसके बाद वापस आ जाते। और जिस रास्ते से गए हुए होते थे वापसी वही रास्ता अपनाते ताकि वो निशानात मिट जाएं और लोगों को पता ना चल सके कि यहाँ से किसका गुजर हुआ है, कौन आया। बहरहाल सुराका बिन जुसम इन्होंने जब सुना तो चुपके से उनका सफर किया। वो लालच थी 100 ऊँटों की, सुर्ख ऊँटों की, अरबों में सुर्ख ऊँटों की बड़ी अहमियत होती, तो उनको ये लालच थी कि ये सुर्ख ऊँट हमें मिल जाए। दोनों सफ़र किया लेकिन ये नाकाम है। पहुँच के करीब भी वहाँ तक रसाई इनकी नहीं हो सकी। और फिर बाद में जब नीयत इन्होंने बदली कि बाप को गिरफ्तार नहीं करना है और इस नीयत से नहीं जा रहे, तो फिर घोड़ा भी उनका उसने साथ दिया, पहुँचे वहाँ और फिर अल्लाह के वसल्लम से एक रुक़ए अमान उसको लिखवाया कि अल्लाह के रसूल आपको शक्ल दी। बहरहाल दो शंबा यकून रबीउल अव्वल 13 नबवी यानी 14 सितंबर 622 ईस्वी को आपने मक्के से हिजरत और 4 रबीउल अव्वल को गारे सवर से रवाना। रास्ता जो आप तय कर रहे थे उसको बहुत सारे लोगों से मुलाकात थी लेकिन कोई पहचान नहीं सका। 2 सहाबी ऐसे थे कि जिन्होंने आपको पहचान लिया और फिर जो है कपड़ों की शक्ल में एक हदिया भी पेश किया। 8 दिन के बाद 2 शंबा 12 रबीउल अव्वल यानी मुताबिक 13 नबी मुताबिक 24 सितंबर 622 ईस्वी को आप खुदा पहुंचे और वहाँ आपने बनु सालिम बिन औफ की बस्ती में डाल के आगे हवा में एक मस्जिद की बुनियाद डाली। फिर आगे चले बनु सालिम की मस्जिद थी, वहाँ आपने नमाज जुमा पढ़ी। जब आप मदीने में पहुँचे ज़ाहिर है इंतज़ार था आपका बड़ी शिद्दत के साथ। लोग आ करके इंतज़ार में मदीने से कुछ दूर बाहर आबादी से इंतज़ार करके लोग लौट जाए और जिस वक्त आपको देखा है लोगों की निगाहें बड़ी खुशी से वो फूले नहीं सिमट और ऐलान किया कि जिसका इंतजार था वो नबी आ गए। वहाँ जो है जब पहुँचे तो जिस ऊँटनी पे सवार थे लोगों की ख्वाहिश थी कि आप वसल्लम हमारे यहाँ, मगर अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया ऊँटनी को हमारी ऊँटनी को छोड़ दो, आप जहाँ चाहेगी ठहर जाएगी और हमारा क़याम वही। वहाँ आप पहुँचे थे अबू अय्यूब जिनका नाम खालिद बिन ज़ैद नज्जारी कबीले बनु नज्जार से ताल्लुक़ था इनका और खज़रजी उनके यहाँ गए और वहीं 7 महीने तक क़याम किया। 7 महीने तक क़याम किया। वहाँ पहुँचने के बाद जो सबसे पहले आपने जो काम किया वो एक रियासत की तश्कील, एक नए माशरे की, जो हमारी इस मौजू का दूसरा हिस्सा है, नए माशरे की तश्कील। अब उस माशरे की तश्कील में क्या क्या उनकी प्लानिंग थी, क्या मंसूबे थे, पहले आपने क्या काम किया, मैं आपके सामने एक एक करके सब अर्ज कर रहा हूँ। सबसे पहला जो काम आपने किया मस्जिद नबवी की तामीर। अब यहाँ एक गौर का मकाम है कि सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी मस्जिद की तामीर। मस्जिद ये मजहबी, सियासी, समाजी ज़िंदगी का एक तरह से मरकज़। हमारी सारी एक्टिविटीज़, सारी सरगर्मियाँ हमारी मस्जिद के ज़रिए से अंजाम दी जा सकती। आज इस वक्त हमारा हाल है कि नमाज़ों के सिर्फ हम लिए हम रखते हैं, 5 वक्त की नमाज़ अदा कर ली हमने, उसके बाद फिर मस्जिद में किसी दूसरे काम के लिए नहीं जाना। जबकि एक मुसलमान की सारी जो सरगर्मियाँ उसकी समाजी होती हैं वही अंजाम पानी चाहिए और बहुत सारे उसके फ़ायदे, बरकत की जगह बहुत सारे फ़ायदे। और मस्जिद को बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तालीम और तरबियत के लिए, बच्चों की, छोटे बच्चों की पढ़ाई के। हमारे इसी हिंदुस्तान में बेंगलोर जामा मस्जिद वहाँ है, सिटी जामा मस्जिद। हमने देखा है कि सिटी जामा मस्जिद को उन्होंने वहाँ की जो आमदनी होती है बाकायदा उन्होंने मस्जिद की शक्ल दे दी, कॉलेजेस कायम की, जो आमदनी होती है वहाँ खर्च कर धीरे धीरे, पहले छोटे मकतब की शक्ल होती, धीरे धीरे ये प्लान बना, उस मस्जिद के जरिए से सारी सरगर्मियाँ इस अंदाज से उनकी अंजाम। तो मस्जिदों को हम मरकज़ इस तरह से बना सकते हैं सिर्फ नमाजों के लिए। तो अल्लाह के वसल्लम ने मस्जिद नबी को वहाँ तामीर की। मस्जिद नबी के लिए जगह की तलाश की
जगह के लिए तलाश की। चुनांचे सहल और सुहैल दो सगे भाई थे, दोनों यतीम थे, इन दोनों की ज़मीन थी और वहाँ पहले से असद बिन ज़ुरारा मुसलमानों की इमामत कराए। आप वसल्लम ने उसका इंतखाब कराया, तो उसका इंतखाब किया और उसको मस्जिद के लिए ले लिया। सहल और सुहैल दोनों ने ये चाहा कि हम तोहफ़तन दे दें, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल नहीं किया, उसकी कीमत नहीं। अब यहाँ एक सवाल ये एक और पैदा होता है। मस्जिदों के लिए आमतौर पर हम ये तलाश करते हैं कि कोई तोहफे में दे दे, हिबात कर दे, या कोई बंजर ज़मीन उसमें हम बना लें। ऐसा नहीं है। यहाँ एक सहल और सुहैल रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों की ज़मीन आपने कीमतन खरीदी। सबक हमें इससे ये मिलता है कि हम मजहबी इमारतों के लिए भी जगह जो है कोशिश ये ना करें कि फ्री में कोई नहीं, बल्कि उसके लिए भी हमें कीमत हम दें, उसको कीमतन दें और सारी चीज़ें वसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक होनी चाहिए। तो एक और सहल और सुहैल ये दोनों नाम हम इस पर गौर करें, ये लफ्ज़ दोनों इतने अच्छे हैं और प्यारे हैं और इसके जो असरात सहल और सुहैल के कि आदमी की नफ्सियात में, मिजाज में नरमी पैदा होती है नामों के इंतखाब से। हफीज़ मेरठी रहमतुल्लाह ने कहा था कि इससे जहनों की बुलंदी का पता चलता है, नाम ज़र्रों के तुम अपने महो अख्तर रखो। जैसा आप अपने बच्चों के नाम रखेंगे उसके असरात भी नाम के आपके बच्चों को पड़ेगा, ये उसका फ़ायदा नहीं। तो वो मस्जिद जो है आपने कीमतन ज़मीन उसकी खरीदी। इब्तिदा में जो इसकी मस्जिद की लंबाई थी 70 हाथ लंबी और 60 हाथ चौड़ी मस्जिद टांगी थी। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे आप तो फिर नबवी मकानात नबी की तामीर की। मस्जिद के जो है वो मशरिक़ी जानिब तो मकानात आपने बनवाए, 2 घर और खजूर की छत थी, उसके दरख्त उसकी पत्तियों की, और जो उसकी जो टहनियों की उसकी दीवार आपने बनाया, फिर उसको लेप करवा दिया, छत थी से खजूर की पत्तियों की आपने डाला। आप वसल्लम ने अपने ख़ानदान को भी उसी वक्त बुला लिया और हारिसा बिन ज़ैद को उनको भेजा कि जाके आप ले आइए। चुनांचे मक्के से उनके ख़ानदान को ले आए और वो 2 कमरे जो थे वो तालीम और तरबियत के मराकिज़ थे। वहीं लोग आते जाते थे, पढ़ते थे, छोटे छोटे जो इब्तिदा में। जब आप पहुँचे तो तीसरा जो आपने काम किया वो इस्लाम की इशाअत का काम। ये नए माशरे की तशकील में तीसरा जो काम था आपने इस्लाम की इशाअत का, दीन की इशाअत का तब्लीग। उस वक्त वहाँ यहूदी कबाइल थे और पढ़े लिखे लोग थे। अब्दुल्ला बिन सलाम नाम के एक यहूदी आलिम वो आए और उन्होंने ज़ाहिर सच जानने की कोशिश की और जब उनको इत्मीनान हुआ तो उन्होंने कबूल किया। उसी दौरान हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में भी आता है। सलमान फ़ारसी भी आए और फ़ारस से और उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मदीने की जो आबादी थी, हम जब उस पर गौर करेंगे तो कई तबकों में, कई हिस्सों में बटी हुई थी। वहाँ 2 मुसलमान अंसारी कबीले थे और उसका खंदज। ये लफ्ज़ अंसारी जो है यहाँ आ रहा है, हमें कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी समाज में जो बिरादरियाँ तकसीम की गई हैं, अंसारी, मंसूरी और खान पठान, ये सब के सब फरार पेशों की बुनियाद पर इस तरह से लोगों ने नाम मंसूब कर दिया और उसकी ये जो तकसीम किए गए तो इसमें जो है वो कोई और तस्वुर इसके पीछे नहीं, ऊँच नीच छूट छाट इस तरह का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं। ये तो हमारी जो है नाफहमी है, गलतफहमी है कि हम उसको एक बुनियाद बना लेते हैं कि फला ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है तो हम बड़े ऊँचे और फला का फला ख़ानदान से ताल्लुक़ तो बड़ा नीचे। गवर्नमेंट के यहाँ जो तकसीम है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मुसलमानों में ये जो है 2 बुनियादों पर तकसीम है। जो जिनके यहाँ अराज़ी के जो मालिकान हैं उनको फॉरवर्ड माना गया है और जिनके यहाँ अराज़ी इस तरह से जो है गैर मनकूला जायदाद जिनके यहाँ उनको समझा गया है कि फॉरवर्ड है, जिनके यहाँ गैर मनकूला जायदाद नहीं है तो उनको जो है बैकवर्ड माना गया, वो बुनियाद गवर्नमेंट। लेकिन ये जो है इस तरह की तकसीम कोई नहीं है इस्लाम में, ये बेबुनियाद। तो ये तो मुसलमान सारे कबीले थे खजरज, और दूसरे जो है एक तबके का वहाँ आप सल्लम के पहुँचने के बाद और इजाफा हो गया, वो तबका मुनाफिकीन, जिसकी सरदारी हासिल थी अब्दुल्ला बिन उबई कि आप सल्लम के पहुँचने से पहले लोगों ने इसको
ये तय कर लिया था कि हम अपना इसको सरदार तस्लीम करते हैं, लेकिन जब आप सल्लम पहुँचे तो जाहिर है इसकी सरदारी जो है वो खतरे में पड़ गई। इसका बड़ा मलाल और अपनी पूरी ज़िंदगी साजिश करते रहे इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की। दूसरा जो मुसलमानों का बड़ा तबका था वो मुहाजिरीन को मुश्किल, एक तो अंसार और हजरत के दोनों कबील, और एक फिर उसी में ये मुनाफिकीन, और फिर तीसरा जो तबका था मुहाजिरीन। वहाँ मकामी आबादी यहूदी कबीलों पर मुश्तमिल थी और जिनकी तादाद तकरीबन 2 दर्जन बल्कि उससे ज़ायद थी। यहूदी कबाइल 3 अहम कबाइल थी यहूदियों की, बनु क़ैनुक़ा, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। ये 3 कबाइल यहूदियों के बड़े हैं। तो जब वहाँ पहुँचे आप तो आपने मुआख़ात, एक काम किया, मुआख़ात का मतलब है कि भाईचारगी पैदा कर अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान। ज़ाहिर की तफरीक कैसे खत्म, बहुत सारे उसके फ़ायदे भी थे, ये तफरीक भी खत्म हुई और फिर ये बोझ न समझे लोग इसको, अंसार मुहाजिरीन को अंसारी बोझ न समझे। तो चुनांचे आपने अंसार मुहाजिरीन के बीच मुआख़ात का रिश्ता कायम किया और ये मुआख़ात का रिश्ता इतना मजबूत था कि अपने जो सगे भाई उन दोनों के दरमियान मोहब्बत नहीं पाई जा सकती थी, जो मोहब्बत इन अंसारी और मुहाजिर के बीच, इन दोनों के बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआख़ात कायम की उनके बीच। उस वक्त जज्बा अंसार का बहरहाल देखने के काबिल था कि जब ये सिलसिला अपनी शुरू की तो बहुत जोश व जज्बे के साथ लोग आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन के बीच मुआख़ात कायम की थी। उन्होंने पेशकश की कि हमारे पास 4 बीवियाँ हैं, हम 2 को तलाक देते हैं, 2 आप रखिए, या 2 बीवियाँ, एक को हम तलाक देते हैं, आप रखिए। प्रॉपर्टी अपनी है और अपने मुहाजिरीन साथियों को लेके गए कि देखिए प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, आधी प्रॉपर्टी आप ले लेते हैं। इस तरह का जज्बा, ये जोश उनके बीच था देखने के काबिल। और ये रिश्ता इतना मजबूत कि जो खूनी जो रिश्ता था वो खूनी रिश्ता इसके मुकाबले में उनके निज़ाम के रिश्ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात कायम किया मुहाजिरीन और अंसार के बीच। शुरू में तकरीबन 40 जोड़े इस तरह से मुआख़ात के आप ज़मीन में बनाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो भाई की वजह थे खारिजा बिन यज़ीद थे, हज़रत उमर के भाई उतबा बिन मालिक थे, हज़रत उस्मान के भाई औस बिन साबित और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ज़ोहरी, हज़रत साद बिन नबी खदरजी, ये दोनों आपस के मुआख़ाती भाई थे। उस वक्त ये उसूल आपने तरतीब दिया था वहाँ पहुँचने के बाद कि अगर एक भाई यानी जिनका मुआख़ात की बुनियाद में रिश्ता आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था, उनमें से अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी जायदाद और उसका माल उसके दीने भाई को मिले। कुछ दिनों के बाद जब दस्तूर मदीना तरतीब दिया गया, उसकी दफात मुरतब की गई। बाद में मैं आपसे अभी जिक्र करूँगा कि जो दस्तूर मदीना तरतीब दिया गया था उसके दफात किस अंदाज के थे। तो जब दस्तूर मदीना तरतीब दिया गया तो ये शिक जो है खत्म हो, विरासत का जब कानून है मदीने में आपने ये कहा कि भाई मरने के बाद एक दूसरा जो है उसका वारिस होगा, लेकिन जब ये विरासत की जो आयतें आई हैं तो उस वक्त जाके ये शिक खत्म हो गई थी और बकिया सारी चीज़ों को बाकी रखा गया था। एक फिर आपने जो आगे किया इस्लामी मुआख़ात के बाद इस्लामी रियासत की तश्कील, इस्लामी रियासत की तश्कील। अब हम यहाँ थोड़ा सा रुक करके सोचें, हमने जो है इस मज़हब को, इस्लाम को फ़ज़ाइल का मज़हब समझा कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात यहीं तक इस्लाम की तालीमात नहीं, उसके आगे नहीं। अगर आप नबवी ज़िंदगी पर निगाह डालें और ख़ास तौर पर आपने हिजरत फरमा मदीने में, तो दूसरा जो काम आपने किया था वही कि इस्लामी रियासत की तश्कील। इस्लाम दरअसल हुक्मरानी के लिए आया और अगर हुक्मरानी के लिए आया ना होता तो बहुत सारी पेशकश आप वसल्लम को आपकी ज़िंदगी में की थी लोगों ने कि हम आपको मक्के के सरदार तस्लीम कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो सबसे जो हसीन औरत को इंतखाब कर लीजिए मक्के में, उससे आपका रिश्ता कर देते, दुनिया सारी दौलत आपके कदमों में ला के डाल देते, लेकिन आपने इसको मंजूर नहीं किया। इसलिए कि दीन इसलिए आया हुआ नहीं था कि किसी मामूली बात में समझौता था। वहाँ तो बस बात यही थी कि सारे जो अदियान हैं जो गलत और खुद साख्ता, उन सब पर इस्लाम को गलबा मिले, सब के सब खत्म किए जाए, सिर्फ इस्लाम गालिब है। कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ताला ने इसका इजहार किया है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़,
وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، ایک دوسری جگہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو ناراضگی ہو، غصے میں آئیں، مشرک غصے میں آئیں، اس بات کی پرواہ نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ یہ دین غالب، یہ دین غالب، اور یہ حکمرانی کرے، محکوم بن کر کے نہ رہے، مسلمان محکوم بن کر نہ رہے بلکہ حاکم بن کر کے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دوسرا آپ نے کام یہ کیا کہ اسلامی ریاست کی آپ نے تشکیل، تو اس وقت آپ نے کچھ ایک دستور بنایا، اس دستور میں کچھ دفعات رکھے گئے، جو دفعات تھے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس کے جو دفعات تھے اس میں یہ تھے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ یہ کیا گیا کہ دونوں کے درمیان اور ان کے حلیف قبیلوں اور خانوادوں کو اس میں شریک کیا کہ سب کے یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ معاہدہ کیا گیا کہ ہم دونوں مل کے ساتھ رہیں گے، باہر کا کوئی شخص یہاں جو ہے اس کو ہمیں بنانے دی جائے گی، ہم نہیں بنا دیں گے، اور اگر یہاں مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے تو سارے لوگ یہ سمجھیں گے ہم پہ حملہ ہوا، سب ایک دوسرے کا مل کر کے ساتھ دیں گے، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اس دستور میں کچھ 47 دفعات تھے۔ پہلی دفعہ اس میں یہ تھی کہ مسلمان ایک الگ امت ہے اور غیر مسلم ایک دوسری الگ امت۔ یہ بہت ہے، اس پر غور کیجیے، مسلمان ایک الگ امت ہے اور غیر مسلم ایک الگ امت ہے، اس لیے کہ مسلمان جو ہے ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، روایات ان کی الگ ہے، عقائد ان کے الگ ہے، کسی دوسری قوم کے ساتھ ان کا عقیدے کی بنیاد پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اصول و ضابطے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ مکمل طور سے اس بات کی نفی کی جاتی ہے کہ دین اسلام کے ساتھ کسی دوسرے دین کا کوئی تعلق نہیں بن پائے گا۔ اگر آپ غور کر جنوبی تاریخ پڑھی ہوگی، سن 47 سے پہلے کی بات ہے جب آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تو ہمارے کچھ علماء یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قومیں وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں، یہاں ہندوستانی جو سرحد اس کے بیچ رہنے والے جو لوگ بھی وہ سب کے سب ایک قوم، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ قومیں وہ نظریات کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، نظریات کی بنیاد پر قومیں وجود میں آتی ہیں، یہ سرحدوں کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتی ہے۔ ایک لمبا یہ ایشو ہے اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو دستور اس وقت تھا اس میں 2 سے 11 دفعہ جو تھی اس میں دیت اور قصاص، جتنے خاندان قبائل کے لوگ ہیں وہ اپنی روایتوں کے مطابق نپٹائیں۔ دفعہ نمبر 14، 15، 19 اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر دے تو قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ بہا ادا کی جائے گی، قیمت دی جائے گی، اس خون قصاص نہیں لیا جائے گا کہ غیر مسلم کو اگر قتل کیا تو اس کے بدلے مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ دفعہ دفعہ نمبر 21 سے 24، 16، 17، 41 سے 47، 40 اس میں یہ تھا کسی باہر کے آدمی کو پناہ نہیں دی جائے گی، کوئی اگر آیا پناہ لینے کے لیے ہماری اس ریاست میں تو اس کو پناہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے 34 دفعہ نمبر یہودی قبیلوں کو مذہبی اور تہذیبی آزادی، یہ اس میں اسلامی معاشرے اسلامی ریاست کی تشکیل کے بعد یہ ہوا کہ مذہبی طور سے یا تہذیبی طور سے آزادی کو دی جائے۔ اور پھر دفعہ نمبر 37، 38، 36 اور 46 مسلمانوں کے ساتھ تمام معاملات میں تعاون کریں گے، یہودی جو قبائل دونوں کے بیچ جو آپس میں طے ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ اور اس طرح سے دفعہ نمبر 38، 18، 45 جنگ کے اخراجات یہ برابر یہ دونوں اٹھائیں، ایسا نہیں کسی ایک مسلمان صرف اٹھائیں یا یہودی اٹھائیں، بلکہ سارے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق جنگ کے اخراجات اٹھائیں۔ بعض دفعات پھر اسے مدینہ شہر کو مقدس قرار دیا گیا۔ آخری بات حاکم اعلیٰ، جس کو ہم اور آپ سارے ملتے ہیں، اقتدار اعلیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ حاکم اعلیٰ ویسے اقتدار اعلیٰ کا حق تو صرف اللہ تعالیٰ کو، لیکن دنیا میں ایک نبی کی حیثیت سے ذمہ داریاں جو بنتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اعلیٰ قرار دیا۔ تمام طرح کے سماجی، شہری، فوجی، قانونی غرضے کی یہ سارے اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گئے، تو اس طرح سے سارے اختیارات آپ کو ملیں گے۔ یہ دستور جس کی یہ دفعات کا ذکر ہم نے کیا، ہجرت مدینہ کے 5 ماہ بعد یعنی شعبان سن 1 ہجری مطابق فروری 630 عیسوی میں اس کا نفاذ
जैसे हमारे यहाँ ये में जो मोहल्ला बनाते हैं सभी दिन 1950 में रसूल का नफाज हुआ उसकी खुशी में, तो ये मदीने का जो दस्तूर था ये 5 माह के बाद शाबान हिजरी मुताबिक फरवरी 623 ईस्वी में हुआ। इस तरह से जो है 5-6 माह में आपने ये 2 कारनामे अंजाम दिए। एक तो ये कि इस्लामी माशरा आपने बनाया और दूसरे ये कि इस्लामी रियासत की तश्कील आपने, ये 2 चीज़, एक तो इस्लामी समाज बना, दूसरी इस्लामी रियासत की तश्कील। हम और आप यहाँ और करके सोचें कि आप वसल्लम ने ये दिक्कतें क्यों उठाई, आपके साथियों ने क्यों उठाई। मक्के की ज़िंदगी में हर तरह की सहूलियात आपको मिल गई और आपने छोड़ा भी मक्का, क्यों छोड़ा, हिजरत आपने क्यों? इसलिए कि वहाँ इस तरह के मौके नहीं थे और आपको ये हुक्म हुआ था कि जो आप चाहते हैं या जो मैं अल्लाह ताला जो चाहता है वो यहाँ इस समाज में मक्के के मुमकिन नहीं, इसलिए आपको हिजरत का हुक्म हुआ। तो यहाँ ये पहलू बहुत नुमायाँ होकर के सामने आता है कि इस्लाम दरअसल हुक्मरानी के लिए आया है और जहाँ भी सदा साजगार मिले हमें वहाँ के लिए कूच कर देना चाहिए और फिर इस तरह एक ऐसा समाज तश्कील दिया जाना चाहिए कि जहाँ जो है खुल कर के इस्लाम की तालीमात का मुकम्मल तौर से नफाज। ये 2 चीज़ें आपने पहुँचने के बाद ये इस मौजूद के ताल्लुक से बातें थी आपके सामने। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक बनाए।